ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਟੀ ਇਹ ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ? ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੌਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚੌਕੀ ਆ ਸੀ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ? ਨਜ਼ਦੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬੁਲਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਸਨ? ਡਾਕੂ 3 ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਡਾਕੂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हाँ जी, अच्छा जी बेटा ठीक है, आप इनको ले जाएं। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की जितनी भी मज़ामत की जाए उतनी ही कम है कि पहले उनको रोक कर उनकी कौमियत के बारे में पूछा गया कि आप कौन हैं, फिर उसके बाद कहा गया इन चूड़ियों को नीचे उतार लो, और इनको फिर सबक सिखाया गया मसीही होने पर जो इनको सज़ा दी गई। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल सलीम भाई, जैसे ये मुतासरा जो ख़ानदान है उन्होंने ये सारी कहानियाँ में बयान की है जी। ये 7 अफराद टोटल जो हैं ये ट्रैवल कर रहे थे जी। 2 ख़वातीन थी और 5 जो इनके साथ मर्द थे। और कल 28 दिसंबर 2020 को 7 बजे के करीब जब इनको इंटरसेप्ट किया है जुराइम पेशा अफराद ने जी, तो उन्होंने सबसे पहले इनको इनके जो है वो अशिया जो कीमती अशिया हैं उनसे महरूम किया है जी। और उसके बाद जब उन्होंने इनसे ये सवाल किया है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, तो जब इन्होंने ये बताया कि हम मसीही हैं जी और फलां गांव से हमारा ताल्लुक़ है, उसके बाद उन्होंने इनकी बच्चियों को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी कौमियत दरियाफ्त करने के बाद उनके साथ ये जुर्म करना, ये जो जुर्म से बढ़कर ये जुर्म है। ये सिर्फ जुर्म नहीं है, ये जो मजहबी तासुब जो है वो इस मुल्क में जो है वो दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, ये उसका बदतरीन जो है ये इसका शाखसाना है। बुजुर्गों, बहुत सारे लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਫ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਔਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਲਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ नाज़रीन, ये गुलजार मसीह मेरे साथ हैं जिनकी बेटी के साथ ये जुल्म हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये छोटा वाक़या नहीं है कि गरीब भट्टा मज़दूर शादी से वापस आ रहा है और उसकी आंखों के सामने, उसके भाइयों के सामने उनके शलवारों से जो उनके औजार बंद है वो निकाल कर उनको बांध दिया गया दरख्तों के साथ, और बांध कर ज़मीन पर फेंक दिया गया। और फिर किसी उनकी जो बेटी है, बहनें जो हैं, उनको झाड़ियों में ले जाकर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये ख़ानदान इस वक्त इंतहाई
परेशानी, गम और दुख और गुस्से की हालत में है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कल का वाक़या हुआ है और अभी तक किसी किस्म का कोई पुलिस अफसर, कोई सियासी क़यादत, कोई समाजी कारकुन इनके घर नहीं आए, इनको इस ट्रॉमा से निकालने के लिए, इस दुख में इनके शामिल होने के लिए। ये ख़ानदान जो अभी जब हम आए हैं इनके घर, हमें देखकर रोना पीटना शुरू हो गई थी कि उन्हें शायद एक उम्मीद नज़र आई कि शायद अब हमारे पीछे कोई आ गया तो हमारा कोई कुछ बन जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप खुदा के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। ये ख़ानदान कर्ज़ के नीचे दबा हुआ है और ऊपर से ये जुल्म इनके साथ हो गया कि इनकी बेटी को 3 जो उबाश डाकू थे उन्होंने दरिंदगी का निशाना बनाया। खुदा के लिए इस बेटी के लिए आप खड़े हो जाएं। इनको इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम इस दुनिया में, इस मुल्क में अकेले हैं, बल्कि हमने इनका साथ देना है और हम इस ख़ानदान की हर तरह से मदद और रहनुमाई करेंगे और पूरा इनको इंसाफ दिलाएंगे। थैंक यू सो मच जी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, बहुत एक मारे बेटे बच्चे दी नूं। बांह तोड़ी। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਹਲੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਨਸਾਨ। ਬੱਚੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਮਾਰਿਆ, ਸਨ। ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ? ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਛਾ। ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, की ਤੇ- लत जलाते नहीं कादे ना जलाती? सीटा ला के सिगटा ला के। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ लाइट देना, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ पाद ਹੈ। साहब इधर लाइट दे दें ਫਿਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ। एक मिनट। ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਖੁਦਾ अच्छा, दो लाइट बेहतरी इधर कर। दबो। हाँ जी। ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ नाज़रीन, ਖਾਣ ਜੋਗੇ अभी नहीं। खानदान के जो लोग ये बता रहे थे, जो छोटा मासूम बच्चा 3-4 साल का, 4 उसके मतलब सिगरेट लगाते रहे हैं और ये बाप का आप रोना देख सकते हैं। उसकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ है, शायद हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इनके जो आंसू है उन पर कुछ रहम आ जाए, कुछ तरस आ जाए। खानदान जिस तरीके से रो रहा है और जिस तकलीफ में, जिस ट्रॉमा में, जिनकी जो जवान बेटी, उसके साथ अगर 3 लोग ज्यादती करें तो उस बाप के हालत और उस बाप के दुख को आप समझ सकते हैं। भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं नाज़रीन आपको दिखाता चाहूँ, ये मुदस्सर भाई हैं हमारे साथ, जो हमारे आज मददगार हुए इस यहाँ पर आने के लिए, ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए। ये भी हमारे साथ हैं। तो आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी सिर्फ आप लोगों से यही अपील है कि हमने इस ख़ानदान के साथ खड़े होना है। जिनसी ज़्यादती मोटरवे पुल के करीब जो इस बच्ची के साथ हुई है, एसर के गांव कक्कड़ गिल अभी तो रहायश कक्कड़ गिल में वाक़या एसर के गांव का है। एसर के गांव पुल के जो मोटरवे का पुल है उसके करीब जो ज़्यादती हुई है, हमने आराम से नहीं बैठना, हमने इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाना है। तो आप अपने स्टेटस लगाएं, पोस्टें शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, लेकिन हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए।